होना चाहिए, कैमल पोस्चर। तो उसके बाद बेनिफिट, एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन होता है, एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन। काउंटर पोज मीन्स व्हाट, एक बैकवर्ड बेंडिंग, एक फॉरवर्ड बेंडिंग। तो इससे पूरा बॉडी का जो मूवमेंट है तो अच्छा ट्विस्ट होता है। हाँ, सो काउंटर पोज इज वेरी एसेंशियल व्हेन प्रैक्टिसिंग द मिडल एंड एडवांस ग्रुप ऑफ आसना। Particularly, it is important that the program is structured so to the backward bend followed by the forward bend. I was just talking of that, vice versa. Whatever practice on one side of the body is repeated by the other side. Just I repeated before that, side bending chakrasan right side, side bending chakrasan with left side. Both sides से balance हो गया। हाँ, यहाँ के मसल को स्ट्रेचिंग आ गई, यहाँ का गया, वहाँ से मसल स्ट्रेच किया, वहाँ का फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। सो बैलेंस शुड बी देयर, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, राइट साइड पोस्चर, लेफ्ट साइड पोस्चर। सो दिस सीक्वेंस काउंटर पोज यू शुड बी ऑलवेज ट्राई विद द व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योगा प्रैक्टिस। बताता हूँ। सो आसनास में भी प्रैक्टिस एट एनी टाइम ऑफ द डे, any time of the day, but your stomach should be empty. So when you are taking breakfast, after 2 hours you can do yoga practice. If you are taking lunch, minimum 3 hours is required. After 3 hours when your stomach is properly, पेट जब पूरा खाली हो जाएगा तब आप आसन कर सकते हो। इसका बॉडी शुड बी, या पानी पी सकते हैं, यू कैन डू। आई एम जस्ट रिपीटिंग सम थिंग्स। The best time is the morning. However, after 2 hours before sunrise, सूर्योदय होने के पहले 2 घंटा आप आसन कीजिए। That is very healthy because there is no phone calls. There is no phone calls. There is no sound of any cars. There is no disturbance of TV, mobile, all these things, children's. So the time should be like that when in the morning when your body is relaxed. After proper sleep your body should be relaxed. Then you can do asanas properly. You can judge your asanas properly. आप थके हुए हैं, आप आसन कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, सामने टीवी देख रहे हैं, no use of that. Because this is depending upon your time. In the morning time. Yeah. इसमें और भी कुछ है, मैं और थोड़ा बता दूँ। हाँ, तो in the morning time is best for yoga practice. The atmosphere should be pure and quiet. I just talk about that. And empty stomach. Empty stomach asan should be, you can do properly. So one more thing I want to say, that when you are practicing in the morning yoga practice, your body is quietly stiff. So people are all, some people are rich people, some people are higher middle class, some people are lower middle class. When you are sleeping, you do not directly sleep below the fan. You sleep at one side of posture. When the direct flow of the air is coming from fan or AC, then the body becomes painful in the morning timing. Body stiff हो जाती है. Many corporate people they are doing 12 hours. They are working for 12 hours in air condition, but they don't have option. Then their body is becoming stiff and stiff. So always you try to minimize AC. You do 1 or 2 hours AC, then switch off AC, then sleep down. The morning time the body is always stiff, so you have to do some loosening exercise before practicing asanas. Some loosening exercise. Now for the ladies, so some asanas are more useful for ladies in the pregnancy also. The asanas on the stomach, that should be avoided when the pregnancy. Side bending asana is good, backward bending asana is good, pranayama is good. So in the pregnancy you have to check your asana with your competent yoga teacher and with also consultation with your doctor. So pregnant ladies उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। डॉक्टर के बाद योगा टीचर, कॉम्पिटेंट योगा टीचर जो है, जो उसको सही जानकारी दे सके, उसके एडवाइस के ऊपर ही आसन करना चाहिए।
So age limitation, I have just talk about that. No age limitation, anyone can do asanas. आसन हाँ या हाँ 8 साल के बाद शुरुआत कर सकते, बिकॉज द चिल्ड्रंस आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स फास्ट. आसन रिक्वायर्स स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट. तो चिल्ड्रंस आर प्रीफर टू डू, दे शुड डू सूर्य नमस्कार, ऑल फास्ट एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग है, रनिंग है, हाँ जंपिंग है, साइकिलिंग है, ऑल दिस थिंग्स चिल्ड्रन कैन डू ऑल फास्ट एक्सरसाइज. 8 साल के बाद योगा करना ठीक रहेगा. स्कूल में सिखाते योगा, फी मिलती है ना, स्कूल में योगा सिखाते, बट उनका जो देयर स्टूडेंट्स आर नॉट मैच्योर्ड फॉर योगा प्रैक्टिस. सो आफ्टर 8 years इफ दे आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस दैट विल बेनिफिशियल फॉर देम. फॉर फास्ट एक्सरसाइज दे कैन ट्राई. Place of practice. Now the asana where you should to do the practice is well ventilized room, calm and quiet. When you are practicing yoga, that the room should be proper. Air should be there, proper ventilation should be there. The place should be calm, quiet. So you can do yoga practice outside also. You can do yoga practice at garden also. But the place should be pleasant. There should not be any disturbance, so you can enjoy yoga practice. And the strong wind should not be there. I just talked about strong air. अभी ठंडी का मौसम में आप गार्डन में जाके प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम करेंगे, पूरा कफ भर जाएगा चेस्ट में. पीपल्स आर गोइंग, सीनियर सिटीजन दे आर गोइंग, दे वांट, घर में झगड़ा होता है बेचारे गार्डन में जाके बैठते, हाँ, और बाद में शीतली प्राणायाम करेंगे. ठंडी में कफ हो जाएगा. ठंडी ज़्यादा हवा है, बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही जो भी करना है कीजिए. आपको बाहर निकलना है, आप मॉर्निंग वॉक लीजिए, जॉगिंग कीजिए, जो भी आपको जो प्रैक्टिस, जो आपका जैसा कैपेसिटी है. ज़्यादा ठंडा सीजन है, बाहर जाके योगा प्रैक्टिस मत कीजिए, कमरे के अंदर कीजिए. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. So always do yoga practice with blanket. Do not directly lie down. अभी this mat is this wooden floor is there. It is very good for yoga practice. Wooden floor the people are लोग बना के लेते हैं योगा का रूम जो wooden. You have to practice on the blanket. Yoga practice you have to practice on the blanket, yoga mat, anything. ज़मीन के बाहर पैर नहीं रखना. बड़ा ब्लैंकेट लीजिए, नीचे ज़मीन पे डालिए. हाँ, योगा मैट चाहिए. हाँ, जो भी है, हाँ मैट्रेस चलेगा, हाँ कारपेट चलेगा, शतरंजी चलेगा, ब्लैंकेट चलेगा, योगा मैट चलेगा, लेकिन ज़मीन पे कभी मत करो. जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी रहता है बॉडी के अंदर रहना. हाँ. So then clothes should be always loose, comfortable. Half pant, baniyan, t-shirt, tracksuit, anything. Though your movement should be free. These very simple things are, but they are very essential. ऐसा मेरा बहुत बार हुआ, सूर्य नमस्कार करते करते पैंट ही फट गया. बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, सामने वाले हंसते हैं. Empty bowl. So yeah, empty bowl. Bathing. So you should do yoga practice after a bath. That is, जैसे पूजा करते हैं. आप पूजा कब करते हैं भगवान? नहाने के बाद ही करते हैं. ये भी एक पूजा है. You are doing yoga practice. You have to wait for some time. आपको बात लेना है, 15-20 मिनट के बाद बात लीजिए. Because energy should be preserved. आपने मेहनत किया, एक केक बनाया, केक के ऊपर पानी डाल दिया, पूरा मेहनत खराब. सो यू डू बाथ एंड देन यू प्रैक्टिस फॉर योगा. दैट विल मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू. थोड़ा गर्म पानी से नहाइए तो बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाए. दैट विल हेल्प यू. यू आफ्टर योगा प्रैक्टिस यू सडनली यू डू नॉट गो फॉर द बाथ. कभी बुखार भी आने की चांसेस है. बॉडी में हीट आ गए, आप शॉवर के नीचे गए, गर्मी का मौसम है, बॉडी में हीट है, बाहर से ठंडा, बुखार आ सकता है.
आ सकता है, इसका स्टेमिना अच्छा, people can be affected by that things. So your bath should be before yoga practice. Yoga practice should be you should have to do the empty stomach and cleaning your bowels. So पेट क्लीन होना चाहिए, हाँ, पेट क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन है, हमेशा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का, नींद पूरा नहीं होता है। So people are more after some age they are being constipated, because the reason of constipation is that their sleep is not proper. When you are sleeping 4 hours, in the night shift people also sleeping only 4 hours, the food is not digested properly, sleep is not well, constipation always created, and after that you are doing asanas, so you will not feel easy, कि तो गैस हो रहा है, पेन हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं हो रहा है। So stomach should be empty, but you have some constipation. You take 2-3 glass of water, lukewarm water, with हल्का नींबू निचोड़ दीजिए, हनी डाल दीजिए, बाद में you can practice. हनी डाल दीजिए, नींबू डालिए, हनी डालिए। And the constipation people will start with some simple asana. They can try with साइड बेंडिंग चक्रासन, ताड़ासन। सो द स्टमक, उसी साइड बेंडिंग चक्रासन आप करेंगे, उसी मूवमेंट में आपको फीलिंग हो जाएगा। कॉन्स्टिपेटेड पीपल दैट ऑन द सेम मूवमेंट, वो भागना ही चाहिए उधर। 2 गिलास पानी पीजिए, साइड बेंडिंग चक्रासन कीजिए, हमारा रोज का सीन है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, पहला पेट क्लीन होने दीजिए, बाकी के आसन दूसरे दिन कीजिए। जब तक ये क्लीन नहीं होता तो आगे जाने में मजा नहीं। साइड बेंडिंग चक्रासन कीजिए, हस्तपादासन कीजिए, त्रिकोणासन कीजिए। हाँ, पानी पीजिए, आप सुबह 2-3 गिलास पानी पीजिए, हल्का गर्म पानी पीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन विल बी वैनिश। नींद के साथ कॉन्स्टिपेशन का क्या? हाँ, नींद का क्या है कि नींद आपकी अगर पूरी नहीं होती तो कॉन्स्टिपेशन होता है हमेशा। आपने जब खाना खाया 6-7 घंटा नींद आपका होना चाहिए। आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी अब गणपति का मौसम आएगा, आप खाना खाइए, रात को घूमने जाइए गणपति देखने को, रात भर गणपति देखिए, सुबह देखिए आपको कॉन्स्टिपेशन होता है कि नहीं, मुझे बताइए बाद में। तो स्लीप शुड बी प्रॉपर, अदरवाइज द कॉन्स्टिपेशन इट विल नेचुरली कम्स। जैसे शरीर को आराम देना चाहिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी ऑल्सो गिवन सम टाइम फॉर डाइजेशन। हाँ, ये सब होना चाहिए। डाइट, नाउ द थिंग्स इज कमिंग ऑन द डाइट। देयर इज नो special diet for yoga, but it is food that you try to natural food. घर का खाना खाइए, ऑयली बाहर का खाना कम खाइए, कभी हफ्ते में 1 बार खाइए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। यू ऑलवेज प्रीफर व्हाट, वेजिटेरियन पीपल, यू शुड ट्राई फॉर वेजिटेरियन मोस्ट ऑफ। नॉन वेज कभी खाते हैं तो ठीक है। सो द बिहेवियर इज बिकमिंग ऑन दैट बेसिस। यू आर टेकिंग नॉन वेज, यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, so your mind will be aggressive, and yoga requires peaceful mind. So naturally way you can do, दूध पीजिए, आप 1 गिलास दूध पीजिए, घर का रोज का खाना खाइए, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर। बाहर का खाना खाएं, गैसेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत हजमी होती है। सो यू ऑल्सो ट्राई फॉर होम मेड फूड। So after yoga practice you can take lunch or dinner after half an hour. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अभी यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। समझे सुबह योगा प्रैक्टिस किया, ऑफिस में जाने को भागदौड़ कर रहे, तो यू कैरी टिफिन विथ यू, सैलेड्स यू कैन कैरी विथ यू, टेक यू ब्रेकफास्ट एट योर ऑफिस। योगा प्रैक्टिस होने के बाद आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, तो ऑल द फंक्शन, बॉडी फंक्शन हो गई है, बॉडी चार्ज हो गई है, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। योगा प्रैक्टिस किया, फटक से खाना खाया तो कुछ गलत है, बुखार भी आ सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बैलेंस होना चाहिए। एनर्जी शुड बी प्रिजर्व बिफोर योगा प्रैक्टिस एंड आफ्टर योगा प्रैक्टिस देयर शुड बी गैप।
ये ओके। सो डाइट, जब आपको भूख लगी तभी आप खाना खाइए, जब भूख नहीं है तो खाना मत खाइए। इफ़ यू आर टेकिंग लंच एट 4 o'clock, यू विल फील डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। आपको 4 बज गए, आप खाना मत खाइए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, एक सफरचंद खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए, एक गिलास